Hello, Mridula. Hello, ma'am. Yeah, I'm just waiting for the other students to join. Just please wait for 2-3 minutes. We are doing a call to them. Yeah. Hello, Hamna. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, I was just waiting for Miraj to join. He was not here in the last class also, last Monday. But I don't think he'll come. All right. So any problem so far, both of you, Hamna and Mridula? No, ma'am. Okay, then shall we start? Yes, ma'am. All right. So I think we did all the numericals in the last class. Sorry, all the examples in the last class. So today we are going to start the exercise. Okay. Yes, Okay. So ma'am. this is your exercise 8.1. Are you guys maintaining your notebook? Are you writing everything which I'm teaching you? Yes, ma'am. Okay. So can you show it to me in the next class? I mean, yes. Yes, ma'am. Sure. In the next class, I'm going to share my number. So whenever I'll ask, you'll take a picture and send me. I want to see what you are writing in your copies, all of you. Fine? Yes, okay, ma'am. Okay. So this is the first question, exercise 8.1. What does it say? Okay. So the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. Okay. So this one is very easy. So see, I taught you this thing. When something is in ratio, I'm just repeating it again. See, if it is like this, that something is in the ratio 3:5. Okay. So I cannot take it like first thing is 3, let A is 3, B is 5. I cannot take it like this. I'll take A to be 3x, B to be 5x. Why?
Because if A is to B, like A upon B is 3 by 5. Fine. From Yes, ma'am. here. Okay. But it can be like this also, na? 9 by 15. In that case also it will come out to be 3 by 5, isn't it? If I cut it by 3 and like from 3 table, if I cut it, it will again be 3 by 5, right? Isn't it? Yes, ma'am. Okay. If I get 12 by 20, this is also 3 by 5, isn't it? Yes, ma'am. So here also the A is to B ratio is 3 is to 5. If 9 by 15, then it ratio is also 3 is to 5. 3 by 15, then also ratio is 3 is to 5. So I cannot say that it is 3 and it is 5, but I can say it is some multiple of 3. It can be some multiple of 5, right? Yes, ma'am. So that is why we always take 3x or 5x or 3k, 5k, whatever. I mean, we multiply it with some number which is unknown. So we say that it is 3 times x, it is 5 times x. So that's why I take it like this. Is this point clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So I'll take it like this. Let all the angles are so 3k, 5k, 9k, and 13k. Okay, these are the angles of the quadrilateral. Now we know the angle sum property. What is the angle sum property for a quadrilateral? What is the sum of all the angles of a quadrilateral? Ma'am, 360. 360 degree. Okay, so 3k plus 5k plus 9k plus 13k. This is 360 degree. Okay, in the bracket, right? Sum of angles of a quadrilateral. Fine. So now add them. What will you get? This is 13 plus 9 is 22 and 5 27 and 3 30 30k, right? Is equal to 360. Right? Have I done the addition correctly? 8, okay, 8 and 16, 17. Yeah, it should be 30. Now, k is equal to 360 by 30. So 1 0 will cancel out. So you'll get, okay, by 3 table, you'll get it 12, right? Yes, So ma'am. k is 12. So therefore the angles are, okay, angles are, so first is 3k, that means 3 into 12. Find out what is 3 into 12. Next angle is 5k, which is 5 into 12. Then another is 9k, which is 9 into 12. And then 13k, which is 13 into 12. Now you can write all the angles. Fine. Yes, ma'am. So like this one will be your 36 degrees, sorry, 36 degree. 5 into 12 is how much? 60 degree. 9 into 12 is 108. 12 in 12 nines are 108. And 13 into 12, you can multiply 156 degree. 156. All right. And you can just check. The sum should come out to be 360. For a cross check, you can do it in the rough. So like this is your side note or a rough, you can say. So just add them. You should get 360, right? It should come out to be 360. Okay, let's move to question number 2. Miraj always miss the important classes. Fine, let's move to question number 2. So I'll use a different page. What does it say? If the diagonals of a parallelogram are equal, so first important thing which is given to you that it is a parallelogram, okay? So you don't have to prove that the sides are parallel, right? When it is given in the question that it is a parallelogram, that means opposite sides are parallel. It is already given, isn't it? Yes, ma'am. And all the properties of the parallelogram will be applicable here. That means opposite angles are equal, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, right? So every theorem of parallelogram will be applicable now. So the diagonals of a parallelogram are equal. So diagonals are equal. Show that it is a rectangle.
Right. So I'm going to use a different page here. Okay, we're doing something on this page. Let's use it. Hmm. So question number 1. What is given first of all? Let's draw a figure. Any parallelogram you draw, because we have to show it is a rectangle, so I'm drawing it like a rectangle, but still I don't know, like I have to prove. Sorry, just draw it properly. Let this is be A, B, C, D, and this is O. Fine. The figure is really bad, but you draw it properly. Okay, let us draw, because the figure is not given, so therefore we write, let us draw a parallelogram A, B, C, D. Right. Now it is given that ABCD is a parallelogram. So, and diagonals are equal. That means AC is equal to BD. This is also given. Now to prove it is a rectangle, right? Yes, ma'am. Okay, now Hamna, you tell me, in the last class I told you, if you want to prove something is a rectangle, so what exactly you have to prove here? Ma'am, that one of the angles are 90 degrees. Okay, one of the corner angle is 90 degree. Okay, one thing. Another thing. See, corner angle is 90 in square also, but you have to prove it is a rectangle. So there is one more thing. Ma'am, that it is a parallelogram. Parallelogram is already given. Okay. Now, see, rectangle is a special type of parallelogram. So every figure is a parallelogram. Rectangle is also a parallelogram. Rhombus is also a parallelogram. Square is also a parallelogram. Fine. I told you, right? Yes, ma'am. Okay. Now to prove that a parallelogram is a rectangle, you need two things. See, what is a rectangle? You know the basic definition of rectangle. What Ma'am, is it? opposite Yes, opposite sides are what? equal. Equal, exactly. So in a square, all the sides are equal. Rectangle, only opposite sides are equal, isn't it? Because Yes, ma'am. अगर हम ये नहीं दिखाएंगे कि opposite sides equal है, सिर्फ एंगल दिखा देंगे तो वो तो स्क्वायर में भी हो जाएगा. तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, राइट? तो इसलिए Yes, ऑपोजिट साइड भी दिखानी पड़ेगी और एक कॉर्नर एंगल भी दिखाना पड़ेगा, तब ये प्रूव होगा कि ये एक रेक्टेंगल है. ऑलराइट. yes, ma'am. तो चलो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू प्रूव. ओके, वन थिंग, वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री. ये ताकि आपको याद रहे तो आप इसको लिखिए इस तरह से, वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री. आई मीन फर्स्ट थिंग यू हैव टू शो. Then second, you have to show that opposite sides are equal. So these two things basically you have to show, right? Yes, ma'am. Okay, this is for your, I mean, your understanding, or you can write it in the exam also. There is no harm in writing. Fine, let's do the proof. See, first thing, you have to show that one corner angle is 90 degree. Corner angle means if I take this angle D or angle C or angle B or angle A, right? So अब अगर क्योंकि कॉर्नर का पूरा एंगल चाहिए तो हम कोई ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये एंगल पूरा आ रहा हो. लेट्स टॉक अबाउट एंगल डी, राइट? फाइन. Yes, ma'am. मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए जिसका पार्ट है एंगल डी? Ma'am, DOC और AOD. सी, ए और डी इफ आई टेक तो उसमें पूरा एंगल डी नहीं आ रहा है ना. Ma'am, ACD. इसमें तो सिर्फ इतना ही आ रहा है, ए सी डी. यस, वेरी गुड. तो अगर मैं ये वाला पूरा ले लूं, फाइन मृदुला, Yes, ma'am. तो इसमें ये पूरा एंगल आ रहा है ना, राइट? एंगल डी. Yes. या सो आई टेक वन एंगल. लाइक अब हम कोई दो एंगल को, सॉरी, अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि हम एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक ऐसे ही ये वाला ले लेंगे. इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और सीपीसीटी से हमारा एंगल डी और सी जो है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट?
Yes, ma'am. तो पहला स्टेप है इन दोनों, क्यों हम इक्वल क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज हमको इसको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस का यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग इज वी विल शो दैट दे आर इक्वल। ओके ओके, अगर मुझे ऐसे मिल जाता है दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट, और क्वेश्चन में ये दिया है इट इज ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम, फाइन, इसका मतलब है कि जो साइड AD है, लाइक दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, इजंट इट, Yes, एंड ma'am. दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल बन गए? यस Ma'am, मृदुला, co-interior angles. को इंटीरियर एंगल, और उनका सम कितना होता है? Ma'am, 180 180 degree. डिग्री। और अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, प्रूव हो गया ना? Yes, ma'am. या सो दिस इज द स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू यूज हियर, फाइन। Yes, So ma'am. let's take these two triangles. Now in triangle ADC and triangle, now name it very properly. So if I'm starting from A, so here I'll start from where? B, right? B, Yes. then corner angle in the middle, B, C, and D. Okay, now tell me what do you have here? Okay, one thing I can see, CD is equal to CD, which is common part of both. Okay, what else? Hamna, you tell me. Ma'am, AC is equal to BD. Why? Ma'am, because the diagonals are equal. Yes, it is given. Very good. Mridula, next thing. Ma'am, angle D is equal to angle C. See, no angle is given. It is only given. What you are saying? Sorry, repeat. Ma'am, angle D is equal to angle C. No, that we are going to show. It's not given. See, it is. We have to prove that one corner angle is 90 degree. Look Ma'am, here. AD. Look here. Ma'am, What is given? Mridula, wait. Look here. What is given? It is given that ABCD is a parallelogram. That's it. And diagonals are equal. Only this much is given. No information about angles. ma'am, angle AOD is equal to angle BOC. Okay, this angle you are talking. But I'm taking this whole triangle, this full triangle. तो ये वाले angle का तो कोई use ही नहीं है ना? Isn't it? See, I'm taking one triangle like this and another triangle like this. मैं अलग अलग करके draw कर दिया. अब ये जो बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, isn't it? Yes, ma'am. तो मैं क्या ले सकती हूँ बताओ? देखो, अब ये दो फिगर्स हैं, इसमें ये वाली साइड तो कॉमन थी, मैंने ले लिया, फाइन। ये वाली जो साइड थी ये गिवन थी। ओके, थर्ड साइड का कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। पैरेललोग्राम की जो थ्योरम्स हैं अब वो यूज करिए। इफ यू नो इट इज अ पैरेललोग्राम, ट्राई टू यूज वन थ्योरम। Ma'am, ma'am, AD is equal to AC. DC. टेल मी द नेम ऑफ द थ्योरम। Ma'am, the the opposite sides of parallelogram are equal. Exactly. Yes. So that is why theorems are important, right? Yes. So we will say that AD is equal to BC. Opposite sides of a parallelogram are equal, right? So which criteria it is become? SSS criteria. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, you can write it. So ये congruent हो गया, ठीक है? Triangle ADC is congruent to triangle BCD. ये आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, SES, sorry, SSS. So by CPCT, अब ये वाला, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, राइट मृदुला? हम ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. CPCT से मैंने बोला कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, तो इतना काम तो अभी हो गया। ओके, अब हमको दिखाना है कि ये दोनों या इसमें से कोई एक हम प्रूव कर दे 90, तो दूसरा तो अपने आप 90 आ ही जाता है, तो हम कोई एक एंगल को 90 दिखाएंगे, राइट? चलिए, इक्वल तो आ गया। लेट मी कॉल इट माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब मैंने दूसरा स्ट्रैटेजी बताया था कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है? इनका सम 180 डिग्री होगा, तो उसको ठीक से लिखिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बिकॉज सिंस AD is parallel to BC, right? DC is a transversal. Can you see this?
this side is parallel to this side, right? Yes, ma'am. And DC is a transversal cutting it. So therefore this angle is equal, like plus this angle is 180 degree. So therefore angle D plus angle C is equal to 180 degree. Co-interior angles are supplementary. This is the theorem you have already studied, right? अब इक्वेशन 1 से एंगल डी और एंगल सी जो है वो इक्वल है, तो आप सी को हटा दीजिए, सी की जगह आप फिर से एंगल डी लिख दीजिए, बिकॉज हम एंगल डी को कोशिश कर रहे हैं दिखाने की. तो it is 180 degree. So twice of angle from first you can write in the bracket. So twice of angle D is equal to 180 degree and angle D is equal to 90 degree. Fine. Yes, ma'am. तो हमने क्या क्या दिखा दिया. अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमको क्या जरूरत थी, दैट वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, राइट? Yes, ma'am. ओके. अब देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये हमको दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? Yes, ma'am. या तो हम डायरेक्टली थ्योरम से लिख देंगे, हम उसको प्रूव करने की नहीं जरूरत है. ओके, so I'm writing it here. Where is my pen? Okay, yeah. Sorry, I'm writing it here. So since ABCD is a parallelogram, therefore opposite sides are equal, right? Yes, ma'am. Fine. So this is one theorem. अब हम दोनों को समराइज कर देते हैं. I mean हम इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर हम ऐड कर दे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. फाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस उसको एक समराइज करके ठीक से लिख दीजिए. That since opposite sides are equal, or you can write it like this, since इसमें ही sides लिख दीजिए, that AB is equal to CD and AD is equal to BC. Fine. Yes, ma'am. So since opposite sides are equal and one corner angle is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle, right? Yes, ma'am. Okay. Okay, please write it down and let me know when you have written. बस अब तुम. Yeah, have you written? Yes, ma'am. Okay. सी एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें समझिए. क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में क्या दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस सेकंड क्वेश्चन ये आपको ऑलरेडी दिया था दैट इट इज अ रेक्टेंगल, सॉरी इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट?
Yes, तो ma'am. हमारा जो वो वाला स्टेप था शो करने का कि ये एक पैरेललोग्राम है वो बच गया, हमको ये दिखाना नहीं पड़ा दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो हमने क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम था इसलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट हम ना। Yes, ma'am. तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रूव किया तो हमने सिर्फ एंगल पे ही फोकस किया, हमने सिर्फ एंगल को दिखाया कि वो 90 डिग्री आ रहा है क्योंकि वो हमने थ्योरम से यूज कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होता इट इज अ क्वाड्रिलेटरल तो फिर हमें वो भी करना पड़ता, राइट। Yes, ma'am. तो इसलिए प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। Okay, this is the third question. Okay, show that if the diagonals of a quadrilateral, now look here very carefully, only quadrilateral is given, okay, not a parallelogram, bisect each other at right angles, then it is a rhombus. Okay, so ये दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, तो आपको शो करना है दैट इट इज अ rhombus. Is it okay? Question is clear? Yes, ma'am. Hmm. Don't be so tired. Please wake up, both of you. चलो लेट्स ड्रॉ फिगर. फिगर इज नॉट गिवन. अब क्योंकि रोम्बस शो करना है तो एक रोम्बस के जैसी ही फिगर बना लेते हैं. ओके, लेट दिस इज A, B, C and D. Okay, now it is given first of all that ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Fine. And it is given that the diagonals bisect each other. So if I draw two diagonals here, and let this is O. So it is given that this side is equal to this side, all right? And this part is equal to this part. So it is also given that AO is equal to CO and DO is equal to BO. This is also given to you. And they cut each other at 90 degrees. So basically these angles, these are also given to be 90 degree, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now what you have to show that ABCD is a rhombus. Now tell me what exactly you have to prove here because it is given that it is a quadrilateral. So what is the first step? Ma'am, first Ma'am, we have to here prove is it is a parallelogram. Okay, very good. So first of all, we will show that it is a parallelogram. So that means कि हम sides को parallel दिखाएंगे. AB is parallel to CD, AD is parallel to BC, right? Yes, ma'am. Okay. yes, What will be the second step? चलो parallelogram prove हो गया. अब rhombus कैसे prove होगा? Ma'am, that all sides are equal. Okay, very good. और कुछ चाहिए prove करने के लिए rhombus? Yes, हम ना? ma'am. Yes. Is there anything else you need? Hamna, you're not speaking. Yes, ma'am. या सो हमने पहला प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, सेकंड हमने दिखा दिया कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये रोम्बस प्रूव होगा या नहीं होगा या कुछ और चाहिए? Yes, ma'am. It will be proved that it's a प्रूव हो rhombus. जाएगा. यस, इतना काफी है रोम्बस दिखाने के लिए बिकॉज इसमें हमें एंगल को 90 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में दिखाते हैं. ऑलराइट, Yes, ma'am. चलिए लेट्स डू द प्रूफ नाउ. अब हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिखो कि एग्जैक्टली क्या शो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करना है दैट ABCD is a parallelogram. First step. Fine. Second Yes, step, what you have to show that all sides are equal. Sorry, all sides are equal. Is this clear? yes, ma'am. चलो rhombus ऐसे प्रूव होगा. Let's do the proof. अब अगर हमको देखिए अब स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जब हमको पैरेललोग्राम शो करना होता है ना तो हमेशा हम कन्वर्स वाली थ्योरम का यूज करते हैं.
जब हम कन्वर्स वाली थ्योरम होती है ना, जैसे अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, राइट? Yes, ma'am. तो क्योंकि हमको यहाँ पे लाइंस को पैरेलल शो करना है, तो हम यहाँ पे कन्वर्स वाली थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्स वाला थ्योरम यूज करने के लिए इफ आई मार्क सम एंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हो सकते हैं इसमें? इफ दिस इज माय एंगल 1, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, राइट? Yes, ma'am. एंड इफ दिस इज माय एंगल 3, इसका कॉन्ग्रुएंट सॉरी ऑल्टरनेट एंगल होगा एंगल 4, राइट? तो अगर मैं किसी तरह से एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा देती हूँ, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। नाउ इफ यू गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट? अब Yes, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जब yes, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, राइट? yes, ma'am. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से अगर मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दूंगी, तो एंगल 3 और 4 भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो फिर से अब एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट किसके बीच में बन रहे हैं? इस वाले लाइन के, इजंट इट? Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. ओके, तो उससे ये दोनों लाइन पैरेलल आ जाएंगी। सो दिस विल बी माय स्ट्रैटेजी टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 को हम प्रूव करना चाहते हैं कि इक्वल है। अब एंगल 1 कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, यस हम ना? Yes, ma'am. ऐसे ही एंगल 2 किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस वाले ट्राइंगल का। तो हम ये दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, और सीपीसीटी से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. क्लियर? चलो अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। लेट्स टेक दीज टू ट्राइंगल्स। So in triangle AOD and triangle, so if I'm taking A here, so what will I take here in the next triangle? Mridula, tell me. Ma'am, BOC. No, now here you are wrong. COB. Exactly, COB, because why? Try to understand. देखिए मेरा एंगल 2 इस साइड पे पड़ रहा है और एंगल 1 दूसरी साइड पे पड़ रहा है, isn't it? और मुझे Yes, उन ma'am. दोनों को इक्वल दिखाना है, तो इसलिए अगर मैं इधर की साइड पे लाइक डी मेरा यहाँ लास्ट में आ रहा है, तो इधर लास्ट में मेरा बी आना चाहिए, ताकि ये दोनों एंगल्स लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग हो पाए, isn't it? Yes, So ma'am. it is very important how you are naming the triangle. All right. Now Miraj is coming. Very good. Hello Miraj, can you hear me? Hello Miraj, can you hear me? Yes, ma'am. Where were you? Yes Miraj, where were you? Ma'am, I went to pray. That's fine, but you will miss the class. So how will it work? So did you pray in the like masjid or at home? In the masjid. Okay. Now what can I say? But you missed 2, 3. We are on the third question. You have already missed the 2. Okay, I'm just repeating this third question for you. Right, Miraj? Now look Yes, here ma'am. very carefully. You have your book with you? Yes, ma'am. Okay, please open exercise 8.1. We are doing exercise 8.1, question number 3. Right? Opened? Yes, please speak up. Please respond.
Okay, so in the third question, yes, Miraj, can you hear me? I can't hear you. Okay, I'm just proceeding forward. So in this question, it is given that ABCD is a quadrilateral. See, it's not given that it is a parallelogram. It is only given that it is a quadrilateral. And it is given that the diagonals bisect each other. So that means AO is equal to CO. Like आप एक दूसरे को equal parts में cut करते हैं. And we have to show that it is a rhombus. अब rhombus show करने के लिए first of all हमें दिखाना पड़ेगा that ABCD is a parallelogram. ठीक है? और rhombus वो होता है जिसमें चारों sides equal होती हैं. तो basically these 2 points we have to show that ABCD is a parallelogram and secondly all sides are equal. अब जो strategy देखिए अब पैरेललोग्राम दिखाने के लिए बेसिकली आई हैव टू शो दैट द साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी राइट मिराज Yes, ma'am. and side AD is parallel to side BC. So basically this I want to show. Now what is the strategy here? If this is my angle 1 and this is my angle 2. अब ये दोनों कैसे एंगल है? Alternate interior angles है, right? तो अगर मैं किसी तरह से एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल शो कर दूं तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से मेरी जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, isn't it? Yes, ma'am. So that's what I'm trying to do. Now angle 1 is a part of this triangle BOC and angle 2 is a part of this triangle. So basically I've taken these two triangles and I'm just trying to show that they are congruent so that by CPCT I can say that angle 1 is equal to angle 2, right? Yes, ma'am. Okay. So we are trying to prove that them congruent. Now Mridula, you tell me first thing, what should I write here? AO is equal to CO. AO is equal to CO. Fine. This is given that the diagonals bisect each other. Mridula, oh, sorry, Hamna, next. Ma'am, AO is equal to AO. No, I'm taking these two triangles, this one and this one. So there's no common side here. Yeah, ma'am. Look at those two black triangles, okay? So what else I can take? See, the other diagonal is also bisecting, isn't it? So this side is equal to this side, right? Yes, ma'am. So what can I write? Ma'am, DO is equal to BO. Yes, it is already given. Yes, Miraj, can you tell me the third thing? Mridula, you tell me. Ma'am, AOD is equal to angle BOC. Exactly, because it is given that the diagonals are bisecting each other at right angle, isn't it? Yes, ma'am. So that means this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree, this is given. और अगर 90 डिग्री नहीं भी दिया होता तो ये वैसे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वली होने थे, राइट? Yes, ma'am. Exactly. So I can write angle AOD is equal to angle COB. So in this case, it is already given 90 degree each. Or you can also write vertically opposite angles, anything you can write. तो ये कौन सा criteria हुआ? SAS, right? There are two sides and one angle. So ये triangles जो हैं congruent हो गए. AOD is congruent to triangle COB, right? और by CPCT, angle 1 is equal to angle 2. तो यही मुझे prove करना था. Angle 1 angle 2 के बराबर आ गया. So what does it imply? अब alternate interior angles equal हो गए. Therefore, AB is parallel to CD. Is this fine? Converse of alternate interior angles. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay, चलिए अब एक साइड तो पैरेलल आ गई. AB is parallel to CD. Now other pair. Now ये हम show करेंगे that AD is parallel to BC. So I'm just drawing the figure again. Okay, I just want to clear it a little bit. It's very messed up right now. So this is basically my figure.
Okay, so this was my A, B, C, D and O, right? तो अब एंगल 1 और एंगल 2 हम दिखा चुके हैं दैट दे आर इक्वल, और इसका मतलब है कि ये वाली साइड ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव हो गई है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट दिस लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी. फाइन. Yes, ma'am. ओके, तो ये कैसे पैरेलल होगी? अगर मैं फिर से दिखा दूं कि इनके बीच में जो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल हो जाएंगी कन्वर्स थ्योरम से, इजंट इट? Yes, ma'am. तो इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल अब कौन सा होगा? एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, राइट? Yes, Yes, ma'am. Because this is a transversal cutting it. If this is a transversal, so one angle is this, one angle is this. So मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ 3 and 4. तो अब हम ये दिखाएंगे कि 3 और 4 आपस में इक्वल है. ओके, अब 3 और 4 को इक्वल दिखाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एंगल 3 किस ट्राइंगल का पार्ट है. तो एंगल 3 किस ट्राइंगल का पार्ट है? मिराज, टेल मी. Angle DOC. DOC, exactly. It is coming in this triangle. हम ना एंगल 4 बताओ किस ट्राइंगल का पार्ट है? मैम एंगल AOB. AOB, राइट. चलो अब इस जल्दी से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. जल्दी से मुझे 3 पॉइंट्स बताएंगे सब, एक एक पॉइंट. Ma'am, the second triangle will be BOA. BOA, यस, BOA, यस. तो मैंने दोनों को येलो कर दिया है फिलहाल, ठीक है. चलिए, लेट्स डू इट. सो वी टेक दीज 2 ट्राइंगल्स. अब अगर मैं पहला ट्राइंगल ऐसे लूंगी, नाउ नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसको लिखती हूँ DOC, ओके, तो मेरा आज मुझे नेक्स्ट ट्राइंगल कैसे लिखना होगा बताओ? अगर यहाँ पे D पहले लिया है तो उसमें क्या पहले लेना पड़ेगा? DOA. BOA, very good. Because 3 is coming this side, 4 is coming that side, इसलिए हम ऐसे लेंगे. चलो, फर्स्ट थिंग बताइए क्या कौन सा क्राइटेरिया होगा यहाँ पे? मिराज, यू टेल मी वन थिंग. Okay, this is given that this side is equal to this side because diagonals are bisecting each other. This side is also equal to this side. अब दो साइड तो वैसे इक्वल आ गई हैं. थर्ड बताइए फटाफट. Ma'am, DO is equal to BO. Yes, this is second. DO is equal to BO. Fine. ये तो दोनों given थे. थर्ड बताओ, हम ना बताओ जल्दी से. मैम AOB इक्वल टू DOC. एंगल, यस. सो ये भी तो गिवन था ना कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और वैसे भी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं. तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC और COD, आई शुड राइट COD व्हाटएवर, 90 डिग्री ईच. ठीक है, ये गिवन भी है आपको 90 डिग्री ईच. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए. विच क्राइटेरिया? SAS, एक एंगल है और दो साइड्स हैं. तो ये ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOA. और CPCT से हमने बोला दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, हमको यही दोनों एंगल इक्वल दिखाने थे. क्यों इक्वल दिखाने थे? क्योंकि हमको साइड्स को पैरेलल करना था. ओके, सो दिस इम्प्लाइज जो ये दो साइड्स हो गई हैं AD इज पैरेलल टू BC. क्यों पैरेलल हुई है मिराज, बताओ फटाफट. मिराज, अब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, इजंट इट? Yes, ma'am. देखिए, एक थ्योरम होता है मिराज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है. ठीक है, और उसका कन्वर्स ये है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है इसका मतलब लाइंस पैरेलल होती हैं. फाइन. Fine. तो ऑल्टरनेट एंगल ऑलरेडी इक्वल दिखा दिया हमने, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है. कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. तो हमने दिखा दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है. फाइन, फर्स्ट स्टेप. तो अभी हमको रोम्बस दिखाना है. तो पहली चीज तो हो गया दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. नाउ वी हैव टू शो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी ये रोम्बस प्रूव होगा. राइट मृदुला? Yes, ma'am. चलो यहाँ तक लिखो फटाफट. कंप्लीट इट.
Ma'am, when we showed angle 1 is equal to angle 2, then it should be like AD is parallel to BC, right? एक मिनट, अगर एंगल 1 मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या? इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वेट, अगर ये दोनों साइड्स, या व्हाट यू आर सेइंग, हम ना शायद मैंने कुछ गलत लिखा है ना? Ma'am, if angle 1 is equal to angle 2, then AD should be parallel यस, to वो लाइंस मैंने उल्टा लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, शी इज वेरी राइट, ओके गुड। सो बेसिकली एंगल 1 और 2 इक्वल होने से ये वाली साइड इक्वल पैरेलल आएगी, दैट AD इज पैरेलल टू BC, isn't it? Okay, look here like this. Mridula, Miraj, okay, look here. If these are the two lines, right? Yes, ma'am. A, B, and CD, okay, and this is the transversal cutting it, which is my side BC, and this is my angle 4 and this is my angle 3. तो 3 और 4 इक्वल होने से AB पैरेलल टू CD होगा, ठीक है? मैंने उल्टा लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी। सो ये AB पैरेलल टू CD होगा। यस हमना, गुड, ओके। और ऐसे ही ये वाली जो दो साइड्स होंगी, like if I'm taking these two sides, right, and this is a transversal cutting. Now this is my, okay wait, अभी मेरा ये दोनों साइड पैरेलल हो गया है, ठीक है, अब मेरे को ये दोनों साइड को पैरेलल दिखाना है, and again this is a transversal cutting, so this is my A, D, C and B. So angle 3, this is my angle 1 now and this is my angle 2, right? तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर हुआ तो यानी कि ये AD पैरेलल टू BC आएगा, राइट? Yes, ma'am. यस, ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। ये वाला जो फिगर्स है विच आई एम ड्राइंग इन रफ, तो ये भी आप अपने साइड में कहीं रफ में बना सकते हैं, ओके, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, लाइक दिस विच आई एम ड्राइंग, इफ यू विश यू कैन मेक इट, ताकि आपको भी ठीक से ध्यान रहे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। ओके, हैव यू रिटन टिल हियर? Yes, have you written till here, all of you? Yes, ma'am, done. Mridula, done? Yes, ma'am. Miraj? Yes, ma'am. Okay. अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो कुछ रिलेशंस तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। अब हमने पहले ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, AOD और COB, फाइन। तो AOD COB, तो हम CPCT से ये दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं, राइट? तो यहीं पर हम लिख लेते हैं दैट बाय CPCT AD is equal to BC. First information we got, right? आप अलग से भी लिख सकते हैं दोबारा से, that since these two triangles are equal, therefore by CPCT, so this is your equation number 1. All right, मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये दोनों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, DOC, ओके, तो यहाँ पर what can I write by CPCT? That side DC is equal to AB. Yes, ठीक है इतना? Yes, ma'am. Okay, this is my equation number 2.
तो मुझे ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल मिल गई है, बट मेरे को अभी सारी साइड्स को इक्वल दिखाना है, राइट? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक फिगर इधर बना लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। सो बेसिकली दिस इज माय फिगर। ये वही फिगर है, हम जस्ट मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग इट अगेन। तो मैंने क्या नाम दिया था इसको? ABCD। ABCD। ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए। मैंने ऑपोजिट साइड्स को तो दिखा दिया, दैट AB इज इक्वल टू CD, फाइन, ऑलरेडी शोन। दिस वाज माय आई थिंक फर्स्ट और सेकंड। काम करो मैम। क्या दिस इज फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन? प्लीज टेल मी। मैम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में AD और BC इक्वल था। ओके, दिस वाज माय बेसिकली फर्स्ट जो मैंने ऊपर करके दिखाया है, और दिस इज माय 2। दिस इज ऑलरेडी आई हैव डन, ठीक है। अब एक चीज अगर मैं ऐसे दिखा दूं, देखिए ऑपोजिट ऑपोजिट तो इक्वल हो गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, राइट, और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। अब अगर मैं कोई दो साइड लाइक एक के बाद एक जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उन दोनों को इक्वल दिखा दूंगी, तो वो तीनों इक्वेशन को मिला के सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। yes, ma'am. अगर मैं कुछ ऐसा दिखा दूं दैट AD इज इक्वल टू DC, लाइक ये वाले साइड और ये वाली साइड को इक्वल दिखाने के लिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल को लेना पड़ेगा? AD जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, बताओ? मैम AOD। AOD, वेरी गुड। ओके, और CD किस ट्राइंगल का पार्ट है? मैम COD। COD, yes, so I'll take these two triangles. Yes Miraj, is the point clear? Yes, ma'am. ओके, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम ये ही ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, दैट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने ये दो ट्राइंगल लिए। ओके, वेरी क्विकली ट्राई टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, और फिर CPCT से हम लिख देंगे कि साइड्स इक्वल हैं। फाइन, चलिए इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल, ओके, अगर मैंने यहाँ पे D लिया है तो व्हाट शुड आई टेक हियर? Yes, Hamna, what should I take? Ma'am, DOC. Yes, DOC, because D is a common point here, isn't it? D इसका भी पार्ट है, D पॉइंट इसका भी पार्ट है, तो यहाँ पे भी D ही आएगा, DOC, राइट। चलो बताओ जल्दी से इसमें क्या क्या है। हम ना क्विकली टेल मी। एक साइड तो कॉमन है, मिराज टेल मी विच यू कैन सी। विच इज द कॉमन साइड हियर? ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल के बीच में है ना? यस, Yes, कैन यू ma'am. सी मिराज? चलो बताओ कौन सी साइड कॉमन है, जल्दी बताओ। DO is equal to DO. Can you see that in the figure? चलिए और बताइए, हम ना फटाफट बताइए। Ma'am, AO is equal to CO. Very good. It is already given that the diagonals are bisecting. AO is equal to CO. Good. Amridullah, next information. Quickly tell me. मैम AD इज इक्वल टू DC। ये तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं पता हमको। Ma'am, 90 degree. They are adjacent angles. Adjacent angles. So ma'am, that See, सारे एंगल, why you are forgetting, ये भी तो दिया है कि ये सारे एंगल 90 डिग्री है, isn't it? ये दिया yes, है ना ma'am. ऑलरेडी क्वेश्चन में, that the diagonals are bisecting each other at right angle. तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री गिवन है, तो दोनों एंगल इक्वल गिवन है ना आपको। तो कैन आई राइट इट, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC, 90 डिग्री ईच, राइट? यस मैम। गिवन भी है 90 डिग्री ईच गिवन। चलो हो गया। कौन सा क्राइटेरिया आया? बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ट्राइंगल DOA is congruent to triangle DOC, और by CPCT
हमारी साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। यही हमको दिखाना था दैट बाय CPCT योर साइड AD इज इक्वल टू साइड CD. This is my equation number 3. Any problem so far? No, ma'am. चलिए अब सारी तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं बिकॉज हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अभी मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इफ आई ओके फ्रॉम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो पहले 1 को ले लेते हैं। व्हाट डज इट से दैट AD इज इक्वल टू BC, राइट। AD इज इक्वल टू BC, फाइन। अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए। वेट, AD BC के बराबर आ गया। अब थर्ड से देखिए AD CD के भी बराबर है, ठीक है। तो कैन आई राइट इक्वल टू CD हियर? यस। देखिए Yes, AD CD के बराबर है तो ये AD CD के बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पर? Yes, ma'am. यस। और AD BC के भी बराबर था तो AD BC के बराबर भी यहाँ पे दिख रहा है। अब कौन सा इक्वेशन बचा? इक्वेशन नंबर 2 बचा। अब इक्वेशन नंबर में जो CD है वो AB के बराबर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी CD लिखा हुआ है तो मैं इक्वल टू AB भी लिख देती हूँ। तो जो चारों साइड्स है वो इक्वल आ गई, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी 1 मिनट। इसको लिखिए, आई एम जस्ट कमिंग। यस, लिख लिया। yes, ma'am. तो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? मैंने तीनों इक्वेशन को कंक्लूड कर लिया है। तो तीनों इक्वेशन से मुझे ये मिल रहा है दैट चारों साइड्स इक्वल है। तो अब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ABCD पैरेललोग्राम भी शो हो गया है और चारों साइड्स इक्वल भी शो हो गई है। फाइन। Yes, ma'am. तो बस इसको अब कंक्लूड कर लेते हैं। तो अब इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं दैट नाउ सिंस AB is parallel to CD and sorry what I'm writing, yes, AB is parallel to CD, AD is parallel to BC, so therefore ABCD is a parallelogram, ठीक है। पहली कंडीशन बन गई। ऑल्सो अब सारी साइड्स इक्वल है। AD is equal to BC is equal to CD is equal to AB, therefore ABCD is a rhombus. Is this clear? Yes, ma'am. See, these questions are very interesting and very good questions because इसमें आपका पूरा रिवाइज हो रहा है, लाइक पूरा ट्राइंगल्स का चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और सारी की सारी थ्योरम्स को आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपने लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरम्स पढ़ी थी, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम, को इंटीरियर एंगल थ्योरम, वो सब इस चैप्टर में यूज हो रही है। कैन यू सी दैट? मैम। हाँ, और इसमें सारा जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि रोम्बस क्या होता है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? कि हमें आपको यही नहीं पता होगा कि प्रूव करना क्या है, राइट? यस मैम। तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समराइज कराया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो अगर पैरेललोग्राम दिखाना है तो क्या प्रूव करने की जरूरत है, रेक्टेंगल दिखाना है तो व्हाट यू वांट टू प्रूव, रोम्बस दिखाना है तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, स्क्वायर दिखाना है तो व्हाट यू हैव टू प्रूव। वो पॉइंट्स आपके माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, तो अभी तो 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन? Yes, ओके ma'am. मैम। Okay, just one more question, then I'll end the class. Because these are long questions, they take time. इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चंस थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं। चलो देखिए, इस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है विच यू पीपल डिडंट नोटिस, क्योंकि आप लोग को थ्योरम्स ही याद नहीं है।
अभी जो हमने क्वेश्चन किया, वेयर इज इट? ओके, देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट हमने किया है ना स्टार्टिंग का, दिस पार्ट, ये जो हमने पहले दोनों को पूरा दिखाया कॉन्ग्रुएंट, इजंट इट, पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, राइट? इसको हम सिर्फ एक लाइन में लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, राइट? Yes, ma'am. Yes. यस, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप सीधा लिख सकते थे, आई मीन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको थ्योरम माइंड में आ जाती है, याद रहता है, तो आप लिख सकते हैं दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका पहला पॉइंट ऐसे ही प्रूव हो गया एक लाइन में। और अगर आपको थ्योरम याद नहीं आ रही है तो फिर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए, सीपीसीटी यूज करिए, सब यूज करिए और फिर पैरेललोग्राम प्रूव करिए। योर चॉइस। फाइन। Yes, ma'am. चलिए अब एक साइड नोट में लिख ही लीजिए, ऑल्टरनेट वे। बस एक लाइन की थ्योरम लिखनी है आपको। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it is a parallelogram. Proved. तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया आपका, इट इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? इसको आप साइड में लिख लीजिए। और इन केस आपको नहीं याद आती है थ्योरम तो फिर आप ऐसे करेंगे इसको, ठीक है? फाइन, शिल आई मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. ओके, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, इट्स योर चॉइस। उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिकॉज इट्स अ थ्योरम यू आर यूजिंग, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। Okay, wait for it to come. Okay, next question number 4. Now look here carefully. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Okay, so it is already given that it is a square. तो अगर स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब क्या क्या गिवन है आपको? मिराज टेल मी, क्या होता है स्क्वायर? मृदुला यू टेल मी, स्क्वायर गिवन है तो उसका मतलब क्या गिवन है? And that all sides of quadrilateral is equal. तो ये क्वाड्रिलेटरल है या ये पैरेललोग्राम है? Then parallelogram. एग्जैक्टली, स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, राइट? Yes, ma'am. तो साइड्स भी पैरेलल हैं, लाइक अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर लग सकती हैं। तो अगर स्क्वायर उसने ऑलरेडी यूज किया है, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट कि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है। सेकंड पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स भी इक्वल है, ये भी गिवन है। और थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट गिवन? Ma'am, one angle is 90 degrees. एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे कि चारों साइड्स इक्वल है तो ये तो रोम्बस भी हो सकता है, राइट मिराज? Yes, ma'am. पैरेललोग्राम भी है, चारों साइड्स इक्वल भी है, तो रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो देयर इज वन एडिशनल कंडीशन दैट वन एंगल इज 90 डिग्री। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए एक एंगल 90 डिग्री कहना सफिशिएंट होता है बिकॉज जैसे कोई ये फिगर है, ठीक है? अगर इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो अब मुझे सारे इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो देयर इज अ थ्योरम कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला खुद ही 90 डिग्री आ जाएगा, राइट? ठीक है? Yes, ma'am. यस, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब एक अगर 90 है तो दूसरा फिर से 90 आ जाएगा, राइट? और ये वाला 90 है तो फिर से ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें चारों को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वी कैन ओनली शो कि एक एंगल 90 डिग्री। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, हाँ ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता रही थी। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑल्सो ऑफ द स्क्रीन इफ यू, अगर नहीं लिखा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कोई पिक्चर ले लीजिए अपने फोन में। डन?
Done, all of you? Yes, ma'am. Okay, one last question I want to do. Question number 4. चलिए अब इसमें डायग्राम तो दिया नहीं है, अब बोला है कि एक स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं दैट ABCD इज अ स्क्वायर, और हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो ABCD। ओके, लेट्स ड्रॉ वन स्क्वायर हियर। हम ना प्लीज रीड द क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है आगे? Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Okay, so we have to show that the diagonals are equal. So first thing, to show diagonals are equal, that means AC is equal to BD, ये show करना है, ठीक है, first. Second, क्या show करना है? Please read the question. Hamna, please read the question quickly. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Very good. So first of all equal and bisect each other. तो bisect भी कर रहे हैं, ये भी दिखाना है, तो इसका मतलब हमको ये भी दिखाना है that AO is equal to CO, ठीक है, और DO is equal to PO, ये भी दिखाना है, and at right angle, तो इसका मतलब कि कोई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, isn't it? Yes, ma'am. देखिए यहाँ पर भी एक ही एंगल 90 डिग्री दिखाना सफिशिएंट है। व्हाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये वाला 90 आएगा तो ये वाला खुद ही 90 आ जाएगा, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट। फाइन। Yes, sir. और अब ये दोनों एंगल किस पे फॉल कर रहे हैं? आई मीन ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट? और Yes, अगर ma'am. 1 ऑलरेडी 90 है तो 2 फिर से 90 डिग्री आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसलिए हम चारों को नहीं प्रूव करते हैं, हम किसी एक को प्रूव कर देते हैं, इतना काफी होता है, तो चारों खुद ही आ जाते हैं। तो अगर ये बोला है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम किसी एक एंगल को दिखा सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। चलो, और इसका मतलब हमको ये भी दिखाना है थर्ड पॉइंट में दैट एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, लेट्स डू इट। तो इसमें भी कुछ नाम रख लेते हैं। चलो पहले स्क्वायर देखिए पहला पॉइंट देखिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो दैट AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अब हम कोई ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसकी एक साइड AC हो, तभी तो उसको इक्वल दिखा पाएंगे, इजंट इट? Yes, यस। ma'am. तो AC कौन सी साइड है? ये वाली साइड है AC। तो इसका मतलब मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकती हूँ, राइट? यस मृदुला? Yes, ma'am. तो इसका मतलब मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकती हूँ, और ऐसे ही क्योंकि BD दिखाना है तो इसका मतलब आई कैन टेक दिस ट्राइंगल लाइक दिस वन, दिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए लीजिए ये वाला 2 पॉइंट लीजिए। इन ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ADC and triangle, so if I'm taking A here, what will I take here? BCD, fine। ये A से स्टार्ट होगा तो ये B से स्टार्ट होगा, ये कॉर्नर एंगल D है तो कॉर्नर एंगल यहाँ पे C है, फाइन। चलिए एक साइड तो मेरे को कॉमन दिख रही है इसमें, DC इज इक्वल टू DC, दिस इज कॉमन। नाउ क्विकली टेल मी द अदर 2 कंडीशंस। Come on, please tell me. Ma'am, AD is equal to BC. Yes. ये स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो इसकी चारों साइड्स तो इक्वल है ना, तो AD इज इक्वल टू BC, राइट। अब थर्ड कंडीशन बताओ जल्दी से। Ma'am, angle ADC is equal to angle BCD. Why? Ma'am, because they are 90 degrees.
एग्जैक्टली यस मृदुला, इजंट इट? क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसका मतलब जो कॉर्नर एंगल है वो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, इजंट इट? Yes, ma'am. तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, sorry something wrong with my pen, 90 degree each, okay? Or you can write angles of a square, ऐसे भी लिख सकते हैं angles of a square। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया ये? SAS क्राइटेरिया। मेरा आज ये बात समझ में आई? सी जो भी आपको वर्ड दिया होता है उसका यूज करना होता है, तो अगर ये आपको दिया है स्क्वायर तो इसका मतलब अब जो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज है वो यूज होंगी, तो हमने एक यूज कर लिया कि जो साइड्स हैं वो इक्वल है, और एक स्क्वायर है तो यानी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है? तो ट्राइंगल, सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली आई थिंक, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। चलो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और यहाँ पे बाय CPCT ये प्रूव हो गया कि डायगोनल्स इक्वल है। AC is equal to BD। डन, फर्स्ट पॉइंट डन। चलिए लिखिए जल्दी से, देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इतना हुआ? Yes, ma'am. चलिए सेकंड पॉइंट में क्या दिखाना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, दिस इज माय O। फिर से हम एक स्क्वायर थोड़ा क्लियर बना लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज माय ABCD एंड दिस इज माय O। तो अब हम ये देखिए, पहले प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट साइड इज इक्वल टू दिस साइड, फाइन, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो मुझे कौन से दो ट्राइंगल लेने चाहिए जिसकी ये साइड्स हैं, ताकि मैं CPCT से बोल सकूं कि ये साइड्स इक्वल हैं? चलो ट्राइंगल का नाम बताओ जल्दी से, कौन से दो ट्राइंगल मुझे लेने चाहिए? Nobody will speak up. Come on, if I take this triangle, अगर मैं एक ये वाला ले लेती हूँ, एक ये वाला ले लेती हूँ, राइट? यस मृदुला, वेयर आर Yes, यू? ma'am. Yes, ma'am. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए और ये दिखा दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से ये साइड्स इक्वल हो जाएंगे ना? Yes, ma'am. यस, तो चलो इसको जल्दी से कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन Class ट्राइंगल, 12. यस विराज से व्हाट यू आर सेइंग? चलो एक ट्राइंगल ले लेते हैं DOC, ठीक है? अब अगर यहाँ पे D लिया है तो इधर B लेना पड़ेगा, एंड ट्राइंगल BOA। सी प्लीज नोट इट केयरफुली। देखिए अगर मैं यहाँ पर A ले लूंगी तो क्योंकि ये वाली साइड इधर फॉल कर रही है और ये वाली साइड इधर फॉल कर रही है, इसलिए मुझे फ्लिप करके लेना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मैंने ये वाला D से स्टार्ट किया है तो आई स्टार्ट दिस विद B। So quickly show them they are congruent. Now angle, let's name some angles here. Angle 1 is equal to angle 3, ठीक है? और ये वाला मेरा angle 2 angle 4 के इक्वल है। कैसे लिख सकते हैं? Because angle 1 is equal to angle 3. Why? Alternate interior angles, क्योंकि स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी है ना, तो alternate interior angle इक्वल होंगे कि नहीं, बताओ? Yes, ma'am. तो Yes, DC ma'am. is equal to AB, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड भी इक्वल होती है, राइट? सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है? तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया? ASA क्राइटेरिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। कैन यू राइट दैट? एंड बाय CPCT AO is equal to OC and BO is equal to OD. Is this clear? Yes, ma'am.
चलिए Yes, मैं ma'am. थर्ड पॉइंट भी जल्दी से बता देती हूँ, देन यू कैन राइट। अभी मत लिखो, जल्दी क्विकली देखो इधर। अब मेरे को दिखाना है कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाने के लिए यही ट्राइंगल लेना पड़ेगा ना, राइट? Yes, ma'am. चलो अब क्विकली ले लेते हैं फिर से ये वाले ट्राइंगल दोनों। नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, ठीक है। अब ये मैंने अभी दोनों को CPCT से इक्वल दिखाया है, तो ये साइड्स तो यहाँ से आ गई। दैट AO इज इक्वल टू OC, राइट। एक साइड आ गई, AO इज इक्वल टू OC। नाउ AD इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर है, फाइन। नो नो नो, मैंने ट्राइंगल गलत ले लिया। मेरे को ना यहाँ पे मिले हुए ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, तो क्योंकि मेरे को वेट वेट वेट, आई डिड वन मिस्टेक। ये और ये ट्राइंगल ले लेते हैं। व्हाई? बिकॉज जस्ट फिनिशिंग इट अप इन ट्राइंगल AOD। Sorry, my pen is not working. I don't know what happened to it. AOD and triangle DOC, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब इसको जल्दी से दिखा देते हैं। ए यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये, ओके लेट मी यूज सम कलर्स। तो ये और ये मैंने लिया है, ऑलराइट। Yes, ma'am. ओके फाइन। अब इसमें साइड्स तो इक्वल हैं, बिकॉज AD इज इक्वल टू DC है, साइड स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वन थिंग, एक साइड इसमें कॉमन है, OD इज इक्वल टू OD, फाइन, ये कॉमन है। और मैं क्या ले सकती हूँ, अभी मैंने प्रूफ किया है AO इज इक्वल टू OC सेकेंड पार्ट में, राइट। दिस आई Yes, जस्ट ma'am. प्रूव। तो ये SSS क्राइटेरिया से S पेन जस्ट स्टॉप राइटिंग इन बिटवीन। सो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, राइट। और अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, दिस इज माई एंगल 6 एंड दिस इज माई एंगल 5, तो CPCT से एंगल 6 और 5 इक्वल हो गए, राइट। Yes, ma'am. Okay, I'm writing it here. So by CPCT, angle 6 is equal to angle 5, right? आप लेकिन एंगल 6 और एंगल 5 जो है वो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, बट एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, लीनियर पेयर। अब क्योंकि दोनों इक्वल है तो कैन आई राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री and Yes. therefore angle 6 is equal to 90 degree. So this is also proved. Okay, just finish it up, then I'm ending the class. Please mark your angles properly in the figure. Ma'am, which one is angle 2? Okay, this is angle 2, this one. This is angle 1. Can you see? Yes, ma'am. Okay, this is 3, this is 4. Done. Okay. Ma'am, in the Hmm. third part, you wrote in triangle AOD and triangle DOC, but it should be AOD and COD, right? नो नो नो, आई एम टेकिंग, देखिए 6 और 5 किसका पार्ट है? एंगल 6 इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और एंगल 5 इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, इसलिए मैंने ये दोनों मिले हुए ट्राइंगल लिए हैं, दिस वन एंड दिस वन, राइट। No, ma'am, you wrote it like DOC, but it should be COD. COD, AOD. Oh yes, sorry, I was in a hurry, so I made a mistake. Yeah, that's right.
बिकॉज डी कॉमन पार्ट है, तो अगर यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे भी लास्ट में आना चाहिए यार, दैट्स राइट. Okay, then let's end the class. Okay, shall I stop? Yes. Yes, ma'am. I Okay, have to then. go. Yeah, okay. Let's meet in the next class. Okay, bye, all of you. Okay, bye. Thank you, Thank ma'am. you. Okay, bye.